Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Alluvial soil. The alluvial soil is the most important. Alluvial soil is there is a most important of soil types of India. It is a cover the vast valley area of the Satluj, Ganga, Brahmaputra, and fringes of the southern peninsula. It is a thing near of the presence of plateaus. The alluvial soil is occupies 64 million hectare of the most of fertile land. The soil vary from to sandy loams as a clay is the texture and rich in the potassium but is deficient in the nitrogen and organic matter here. Generally, their color is varies from a gray to reddish brown. Their color to varies from gray to reddish brown. These soils are formed of deposit of silt and sand brought down by the rivers flowing from to the Himalaya and the Great Indian Plateau. Began to the young the soil luck profile development here and began to stimulate the productivity. Is this soil are most important from two point of view of Indian agriculture. You know that is an important point here. Beginner extremely is a productivity. This soil are most important from the point of view of Indian agriculture. Based on geographical considerations, this soil can be subdivided into two divisions. There is a divided here into two division. Is a neighbors is aluminums is a khadar and the older aluminums is a bhangar. There is the most important point here. Soil divided into two division. The newer aluminums is a khadar and older aluminum is the bhangar. Both are different in the texture, chemical composition, and drainage is the capacity and fertility here. The newer aluminum is the light fibrous looms with a mixture of sand and salt. It is found in the river valley. There is a food plant and deltas. One other land hand there is older aluminum is lies on the interfluvials. There is a higher proportions of clay makes their soil strict and drainage is the after often poor. Almost all the crops are growing on this soil here. पहले मिट्टी तो आती है जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मिट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है अपने स्थान पे और 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है इसी की ही फैली हुई है। जलोढ़ जो है मृदाएँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदाओं में से एक मानी जाती है और सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विस्तृत घाटी क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीपीय के सीमावर्ती भागों में ये पाई जाती है। और भारत के सबसे उपजाऊ भूमि के 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदाएँ फैली हुई है और जलोढ़ मृदाओं का गठन जो है बलुआई, दोमट और मृत्तिका दोमट तक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुई है, जो गठन हुई है, बलुआई, दोमट और मृत्तिका दोमट से हुई है और इसमें जो है पोटाश की अधिकता होती है लेकिन नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी तो रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें पोटाश की अधिकता होती है लेकिन नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी सदैव रहती है। सामान्यतः ये मृदाएँ जो है धुंधले से लालिमी भूरे रंग की होती है और इन मृदाओं की जो है निर्माण हिमालय पर्वत और जो है विशाल भारतीय पठार से निकलने वाले नदी द्वारा बहाकर लाई गई गाद और बालू के लगातार जमाव से हुआ है। क्योंकि ये मिट्टी इसलिए इतना महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है और कहते हैं नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी का अपना एक विशेष स्थान होता है और ये काफ़ी देखा जाए मान्यता में काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते तरुण होने के नाते इन मृदाओं में जो है परिच्छेदिका के विकास की कमी होती है और अत्यधिक उत्पादन होने के नाते जो है इन मृदाओं के दो उपविभागों में बांटा गया है। ठीक है, नवीन जलोधक खादर और प्राचीन जलोधक बांगर। तो खादर और बांगर इसी के को ही कहते हैं। तो ये आपको समझ होना चाहिए कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसके दो प्रकारों को जो है खादर और बांगर कहते हैं और दोनों प्रकार की मृदाएँ जो संरचना और रासायनिक संगठन, जल विकास क्षमता एवं उर्वरता में एक दूसरे से भिन्न है। कहते हैं दोनों एक ही का पार्ट है लेकिन दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती है। नवीन जलोधक जो है हल्का भुरभुरा दोमट होती है जिसमें बालू और मृत्तिका का मिश्रण पाया जाता है। यह मृदा नदियों की घाटियों, बाढ़ मैदानों और डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है और इसके विपरीत प्राचीन जलोधक द्वाब दो नदियों के बीच की जो है उच्च भूमि होती है क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है।
मृत्तिकाओं के अनुपात अधिक होने के कारण यह मृदा जो है चिपचिपी है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मृत्तिका का होने के कारण जो है ये मिट्टी आपको चिपचिपा नजर आएगी। और जल निकास कमजोर होगा, यानी जल के जो निकास करने की यानी भेजने की क्षमता बहुत कम होती है। और इन दोनों प्रकार की मृदाओं में लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती है। यानी देखा जाए तो जो ये मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, एक आदर्श मिट्टी है, क्योंकि इसमें हर तरह के फसल का जो है उत्पादन करना संभव बनाती है। तो इसलिए इस मिट्टी को आदर्श मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है।